Kritika, turn on your webcam. Kritika, turn on your webcam, beta. Stephen, turn on your webcam. Stephen, I want to see your face, beta. Thank you. Taran and Vaishali, turn on your webcam, beta. Taran, Vanshika, turn on your webcam. Anshika and Rhythm, turn on your webcam, beta. Thank you, Rhythm. Okay, guys, thank you. Actually, I am just checking all these things after video mode is on. Then I'll take the student inside. So it will take time. Sorry for that. Okay. So we are going to start a new chapter. I'll wait a 1 more minute, then I'll start a new chapter. Okay. I hope you will enjoy this chapter. This chapter is not so tough, but it's some technical things are there. So you will enjoy the chapter. Okay. And when the offline classes will start, we'll do the chapter number 1 again. So don't worry about that. Okay. Whatever the doubts you have, we will do in the class. Okay. Online classes. So I have sent you some notes and all these assignments. Have you done it, Vita? All the assignments and notes I have sent to you, just do it at your school notebook, and whenever the school will, and click the picture and send to me. Okay, in the PDF form. Okay, guys. Thank you, Kritika. Amritpal, reset your webcam, beta. I can't see you full face. That's good. Thank you, bacha.
Okay guys, so we are going to start a class. I am going to lock my meeting. So guys, today we will study the new chapter, chapter number 2. That is chapter number 2, accounting for the partnership. Accounting for the partnership, beta. Isha, turn on your webcam, beta. And Taranjot also. Every time I'm not going to say that turn on your webcam, I'll remove you, beta. I don't have the enough energy to every time I have to remind you, you have to turn on your webcam. This is security for you, my dear. You know some bad people are behind me, हाँ? मेरे पीछे पड़े हैं कुछ शैतान बच्चे, ठीक है? So that's why I'm doing all these things, precautions to, and you are the my class, my dear. I am your class teacher. You should support me. If you will not support me, your class teacher, so who will support me, beta? So guys, so in the chapter number 2, this is the chapter accounting for the partnership firm. Chapter number 2, fundamental. So in the fundamental, we'll start it. So guys, first of all, you studied the definition of the partnership in the business studies. So can you tell me, or can you write the definition of the partnership in your notebook and send to me or WhatsApp to me? So can you do that? Everybody knows the definition of the partnership. Raise your hand if you knows the definition of the partnership. Thank you, Amritpal. Thank you, Simran. Thank you, Vaishali. Thank you. Okay, guys. So come to the point. Most of the people knows the definition of the partnership. I'm just revising you again. So partnership is the relationship between two-person who have agreed to solve the profit of the business carried on by all or any one of acting for all. पार्टनरशिप जो है रिलेशनशिप है बेटा, दो पीपल्स का, दो लोगों का रिलेशनशिप है, who agree to share the profit of the business, जो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया है, और सब भी काम कर सकते हैं और एक भी सबके लिए काम कर सकता है कि कुछ लोगों ने पैसा लगा दिया, दो लोग काम कर रहे हैं, बाकी सब लोगों ने पैसा लगा रखा है, तो उसको भी पार्टनरशिप कहेंगे। और पार्टनरशिप को आपको डेप्थ में जो है बेटा आपकी मैम ने समझाया होगा, बिजनेस स्टडीज में पूरा चैप्टर है इसका। सो इज इट क्लियर टू यू? The definition which is given in your book, that is Indian Partnership Act 1932. आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 में आता है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है बेटा। द पार्टनरशिप द रिलेशनशिप बिटवीन टू persons who have agreed to share the profit of the business carried by all। सब बिजनेस, सब एक्टिव पार्टनर्स हो सकते हैं, या एक या दो एक्टिव पार्टनर्स होंगे, और बाकी जो है साइलेंट पार्टनर होंगे, उन्होंने पैसा लगा रखा होगा। सो पार्टनर्स, फॉर्म्स एंड फॉर्म नेम। The person who have entered into the partnership with one another individually called partner। जो बंदा पार्टनरशिप में आएगा उसको हम पार्टनर कहेंगे, और कलेक्टिव को हम फर्म कहेंगे। सारे पार्टनर्स जिसमें काम करेंगे उसे फर्म्स कहेंगे, और फर्म का नाम होना चाहिए अंडर विच द वी आर डूइंग द बिजनेस और वी आर कैरिंग द बिजनेस। ओके ओके गाइस, so nature of the partnership, second heading is the nature of the partnership. What is the nature of your partnership?
nature of the partnership. This is very important. Listen carefully. If you have any doubt, so raise your hand. If you have any doubt, this is very important. And this is very important for the MCQ also. Partnership, from the legal point of view, it is not separate legal entity from its partners, since the firm's debts can be paid off the private assets of the partner if the firm is not able to pay the liability. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट आई सेड, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है फ्रॉम द पार्टनर्स. ठीक है, पार्टनरशिप ये लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. अगर कोई उधार है और कंपनी चुकाने में कैपेबल नहीं है, कंपनी उसके डेब्ट्स नहीं पे ऑफ कर पा रही है, तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच करके, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच करके वो डेब्ट्स दिए जाएंगे. ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है. व्हाट इज दिस? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. एमसीक्यू का क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट बिजनेस एंटिटी है. ठीक है, दो स्टैंड्स हो गए. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी नहीं है. अगर डेब्ट्स होता है, कोई ऐसी चीज होती है, लायबिलिटीज होती है, अगर कंपनी पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच करके हम उसकी लायबिलिटीज को, उसके उधार को चुकाएंगे. और पार्टनरशिप जो है पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि अगर कोई, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है. द पॉइंट हैज बीन क्लियर टू यू बेटा? If you have doubt, so just WhatsApp me, I'll explain you again. Otherwise, just show me the thumb. Thank you, Simran. Thank you, Kritika. Thank you, dear everyone. Thank you. I got, except the, okay, Taran, I haven't got any message from you, Taran. Okay, it means everyone has got it. Second, features. Features, point number 1, more or two and more persons. Two and more persons. There must be at least 2% to form the partnership. कम से कम दो लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए. And all such person must be competent to the contract according to the Indian Contract Act 1872. 1872 Indian Contract Act. Every person except the following are the competent of the contract. ये तीन लोग पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं, बाकी सब पार्टनर्स हो सकते हैं except these three people. Number 1 is minor. Number 1 is minor. Number 2 is person of unsound mind. Persons disqualified by any law. Minor who is less than 18 years, he can't be the partner. Point number 1, remember, माइनर आपका, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता. सेकेंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड को देसी में कहते हैं पागल, जिसका मेंटली स्टेटस साउंड नहीं है. he cannot be the partner, he cannot be the partner. Okay,
एंड अनदर वन इज, और कौन पार्टनर नहीं हो सकता, लेट मी, और पार्टनर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, और किसी को लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो भी पार्टनर नहीं हो सकता बेटा, वो भी पार्टनर नहीं हो सकता आपका। ओके बेटा, तीन कौन कौन बताए हैं? नंबर वन माइनर, नंबर वन इज माइनर, नंबर टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नंबर थ्री पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ओके, किसी भी लॉ के थ्रू अगर वो डिस्क्वालिफाइड होता है, ही कांट बी योर पार्टनर। ठीक है, ये एमसीक्यू के आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला पार्टनरशिप की डेफिनेशन तैयार हो गई, सेकंड आपका नेचर ऑफ द पार्टनर तैयार हो गया, और थर्ड जो है फीचर्स तैयार हो गए आपके पार्टनरशिप के। ओके, क्लियर बेटा? नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर, maximum number of the partner. The Company Act 2013 section 464 says that empowers the central government to prescribe number of the partner in a firm subject to the maximum 100 partners, maximum 100 partner. Avneet Kaur, turn your webcam beta. Okay, so guys, I'm very sorry because I have to lock my meetings because some intruders are making my life miserable, so I'm doing like that. Okay, please don't mind, huh? I'm sorry for that. Central government has prescribed the central government has prescribed of the number of the partners in a firm is maximum 100 partners, maximum 100 partners, and the central government has prescribed the maximum number of the partner in the firm to 50, wide the rule 10, wide the rule 10 of a Company Act 2014, 14 के अकॉर्डिंग 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। Thus, in fact, the partnership firm cannot have more than 50 partners, और in fact 50 से ज्यादा पार्टनर्स हमारे नहीं हो सकते हैं। Come to the point, next point is the agreement. What is the next point? Agreement. The agreement. Partnership come into the existence by the agreement either written or oral. जब बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, आपका या तो रिटर्न होगा या ओरल होगा। ठीक है, रिटर्न ओरल दोनों एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। It is the based on the relationship among the partner which may be the particular venture period or will, यानी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कि 2 साल 10 साल 5 साल के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे हीरो ने होंडा के साथ की थी, हीरो होंडा पहले बाइक्स बनाता था, मारुति ने सुजुकी के साथ की थी, मारुति, अब सब ये अलग अलग हो गए हैं, ये लोग सब अलग अलग हो गए हैं। हीरो अलग मोटरसाइकिल बनाता है, होंडा अलग मोटरसाइकिल बना रहा है, सुजुकी अपनी अलग कार बना रहे हैं, मारुति अपनी अलग कार बना रहे हैं। और किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है कि आपको 100 किलोमीटर की रोड बनानी है, तो आपने पार्टनर्स बना लिए, 1-2 पार्टनर बना लिए, चलो 100 किलोमीटर की रोड बना देते हैं। जैसे रोड फिनिश हो गई, आपका कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो गया, आपकी पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो गई। ओके बेटा, माय मीटिंग इज लॉक। अब जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं उनको, या आपको मैसेज कर रहे हैं उनसे बोलो कि अब मीटिंग में अनलॉक नहीं करूंगा। सो रिटर्न एग्रीमेंट, और जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा वो कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। दिस इज ऑल्सो द एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा, मैं आपको एमसीक्यू भी साथ में करा के चल रहा हूँ कि आपको एंड में
परेशानी नहीं हो आप, और आप जो है अंडरलाइन करके चलें इसे। लॉफुल बिजनेस, पार्टनरशिप स्टैब्लिश फॉर द लॉफुल बिजनेस, और पार्टनरशिप जो है स्टैब्लिश की जाती है लॉफुल बिजनेस के लिए। किसके लिए बेटा? लॉफुल बिजनेस के लिए, कि आप जो भी काम करेंगे वो लॉफुल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चोरी करने के लिए पार्टनरशिप कर लें तो वो लॉफुल बिजनेस नहीं है, ठीक है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आफ्टर द लॉफुल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Stephen, your webcam is off. So the agreement between among the partner must be share the profit and the losses of the business. So इस रेशियोज में हम अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी रेशियो डिजायर्ड 3:1 होगा, 2:1 हो, व्हाटएवर द रेशियोज आर देयर, उसमें हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा उसे प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट इज नॉट इनिशियल दैट ऑल द पार्टनर मस्ट शेयर द लॉस। और ये जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर जो है लॉस को शेयर करें, ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉस को शेयर करें। बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे जितने भी पार्टनर्स हैं बिजनेस में वो सब एक्टिव रहें और वो सब बिजनेस में सपोर्ट करें और वर्क करें, और ये भी हो सकता है कि 2-3 पार्टनर काम करें और बाकी जो पार्टनर्स हैं उन्होंने सिर्फ पैसा आपका इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने मनी इन्वेस्ट कर रखा है, वो सिर्फ आपके साइलेंट पार्टनर्स हैं, उनको प्रॉफिट मिलता है और उनके बदले में 2-3 पार्टनर्स जो हैं सिर्फ वही आपका काम करें। ओके बेटा जी। नेक्स्ट, राइट ऑफ द पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे एमसीक्यू आता ही आता है। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, सो इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फीचर्स में 2 and more person शुड बी टू फॉर्म द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, ठीक है। पार्टनर्स कौन नहीं हो सकते? एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है वो आपका पार्टनर नहीं हो सकता, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय द एनी लॉ, जिसको गवर्नमेंट ने डिसक्वालीफाई कर रखा है वो आपका पार्टनर नहीं हो सकता। और नेक्स्ट इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आपका ओरल या रिटर्न होना चाहिए। एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। लॉफुल बिजनेस करना चाहिए उसको, अगर लॉफुल बिजनेस नहीं कर रहा है तो गलत है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर, या तो सब मिलके काम करेंगे पार्टनर में, या फिर 1-2 लोग काम करेंगे, 2-3 लोग जो हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो काम नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आई विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। मीनवाइल जस्ट, अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप मुझे भाइयों वाली बात बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा, इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे बोलो, ठीक है। प्लीज मुझे बोलो, व्हाट्सएप करो, मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसका नाम ही फंडामेंटल है। अगर ये अच्छे से हो जाएगा आगे के 4 चैप्टर हमारे बिल्कुल उंगलियों के टिप्स पे होंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये आपका अगले 4 चैप्टर का बेस तैयार करेगा, इसलिए इसको एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। सबको क्लियर है बेटा? चलो, सुप्ता आपने तो मेरे लिए क्लैप भेजा यार, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर। ऐसे ही रीएनर्जाइज करते रहा करो बेटा, मुझे मुझे क्या मिलेगा? आप जो आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक ही मुझे एनर्जी देते और मोटिवेटेड करते कि और अच्छा पढ़ाऊं। नेक्स्ट, राइट टू द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं?
पार्टनर्स के राइट्स वैसे आपको पता होंगे, तब भी मैं आपको शॉर्टकट में थोड़े से राइट्स बता देता हूं। ईच पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर का राइट है कि मैनेजमेंट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और करना चाहिए उसे। ओके जशन। अनदर वन, पार्टनर हैज राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में किसी भी अफेयर्स के बारे में वो डिस्कस कर सकता है और उसका राइट है कि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके बारे में अवनीत वो डिस्कशन कर सकता है, उसमें अवनीत पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, इज इट क्लियर अवनीत? ओके, थैंक यू, यू आर लिसनिंग अप। Every partner has right to inspect the book of accounts and have a copy of that. हर एक पार्टनर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आकांक्षा चेक कर सकता है वो, और उसकी आकांक्षा एक कॉपी अपने पास रख सकता है। ठीक है, यानी देसी में समझे, जो भी हिसाब किताब होगा पार्टनर में, वो पार्टनर में जो भी हिसाब किताब होगा उसकी कॉपी रख सकता है आकांक्षा, और उसको चेक कर सकता है। इज इट क्लियर बेटा? Thank you, Kansha. Every partner has the right to share the profit or loss with the other in the agreement ratio. और वैशाली एग्रीमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग, ओके कृतिका एंड वैशाली लिसन केयरफुली बेटा जी, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड वो रेशियो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जो भी प्रॉफिट आपके पार्टनरशिप डीड में होगा। ओके बेटा, जस्ट रेज योर हैंड। Stephen, if the partner has advanced loan, his loans has right to receive the interest thereon at the agreed rate of the interest. In the case of the interest is not agreed, so he will get the 6%. स्टीफन वो कहता है कि अगर उसने फर्म को लोन दे रखा है, सो अगर एग्रीमेंट में जो भी रेशियोज हैं, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन्ड है तो हमें 6% उसको इंटरेस्ट देना चाहिए पार्टनर को। यू गॉट माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? दिव्या, बात समझ में आई? अगर किसी ने फर्म, थैंक यू दिव्या, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अमेजिंग गर्ल, माई रॉक स्टार। सो अगर किसी ने स्टीफन फर्म को लोन दिया है और एग्रीमेंट के थ्रू और पार्टनरशिप के थ्रू, वॉट एवर द एग्रीमेंट इज साइन, कितने परसेंट अगर आप लोन देते हैं फर्म को, सो एडिशनल कैपिटल देते हैं तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में ये मेंशन है तो वो 10% का एंटाइटल है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है लोन के बारे में तो उसको बाय डिफॉल्ट 6% लोन मिलेगा। दिस पॉइंट हैज बीन क्लियर टू यू बेटा जी? क्लियर माय डियर स्टीफन? यार कोई वेरी लेट स्टीफन यार, इतने धीमे काम करेगा स्टीफन तो कैसा चलेगा बाबू? है हम कैसे पढ़ाएगा तुमको, हमको जवाब नहीं देती तुम। द पार्टनर हैज राइट नाउ टू अलाउ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। अगर मेरे स्टीफन बच्चे फिर से मुझे देख ले, मैं भी तेरी तरह चश्मा लगाता हूँ स्टीफन, टेंशन मत ले, हम दोनों भाई भाई हैं, ठीक है? हम अपना चश्मे वालों का एक ग्रुप बनाएंगे अलग। तो क्या कहता हूं मैं आपसे, मैं भूल गया यार तुम्हारी बातों में। अगर फॉर एग्जांपल मैं और स्टीफन जो है एक पार्टनर है दो, और स्टीफन चाहता है कि एक थर्ड को पार्टनर बनाना, जिस आप थर्ड को, सुखताब को पार्टनर में हम पार्टनरशिप में लाते हैं, और मेरी मर्जी नहीं है सुखताब को पार्टनर बनाने की, तो स्टीफन उसको पार्टनर नहीं बना सकता जब तक all partners are not agreed, so you cannot admit any partner. Okay सुखताब? ओ भाई जी कुछ अंगूठा शंगूठा, हाँ वेरी गुड। after one more point is very important, after giving the proper notice any partner can be retired. अगर स्टीफन मेरे साथ काम नहीं करना चाहता है
तो वो मुझे नोटिस देके मेरी पार्टनरशिप से जा सकता है, रिटायर हो सकता है। ओके ठीक है स्टीफन, रिटायर हो सकते हो? रिटायर होना चाहते हो मेरे साथ? पार्टनरशिप नहीं करोगे? मैं चीटर हूं? चीटिंग की है तुम्हारे साथ? अरे स्टीफन वेरी नॉटी। हाँ, next point, very important. If the partner incurred the expenses of the business or he pay the amount behalf of the firm, अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्च कर दिया है, ठीक है, मैं और स्टीफन पार्टनर्स थे, हमारी एक छोटी सी दुकान थी और हम उसमें बिजनेस करते थे, और स्टीफन ने मुझसे बिना पूछे उसमें कोई एक्सपेंसेस कर दिया मेरी दुकान, हम दोनों की दुकान के लिए, तो उसको दुकान पे करेगी। ओके वो स्टीफन का पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होगा, दैट विल बी पेड बाय द शॉप। ओके ऐसे ही सेम उसको फर्म पे करेगा अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में एक्सपेंसेस कर दिया है। ओके ईशा, नो थैंक यू। सो इसको एक बार और छोटा सा में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है स्नेहा। नंबर 1, पार्टनर जो है मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है कि वो सारे अफेयर्स पे डिस्कस कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट कि वो बुक ऑफ अकाउंट्स की कॉपी भी रख सकता है और बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक भी कर सकता है। नेक्स्ट है, और वो पार्टनर्स इंटाइटल्ड हैं एग्रीड रेशियोज के लिए, एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एडवांसेस है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है, अगर आप एग्रीमेंट नहीं है तो आप 6% इंटरेस्ट पे करेंगे। इमरजेंसी में कोई भी पार्टनर किसी जो अपना बेस्ट जजमेंट होगा वो ले सकता है, ठीक है कृतिका। 7th पॉइंट है, जब तक सारे पार्टनर्स तैयार नहीं होंगे तो न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है कृतिका। इट इज क्लियर टू यू, डोंट गेट बोर्ड। अनदर वन, अगर कोई भी पार्टनर चाहे तो प्रॉपर नोटिस देके बेटा रिटायर हो सकता है, और किसी भी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई फर्म के लिए एक्सपेंसेस किया है तो फर्म उसको पे करेगी। अब बहुत जल्दी से पार्टनरशिप डीड समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरे बच्चों मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? यू आर एंजॉइंग द क्लास और नॉट? सिर्फ ईशा को मजा नहीं आ रहा है, स्टीफन को तो आइसक्रीम ना। ओह थैंक यू स्टीफन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू स्टीफन। सो पार्टनरशिप डीड, अब हम करते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड वही अपना रिटर्न डॉक्यूमेंट, पार्टनर का एग्रीमेंट आपस में। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए, छोटा छोटा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स होना चाहिए, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी उसका नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। फर्म का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, फर्म का नेम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कहाँ करेंगे उसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए आपके पास। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस चीज का करेंगे आप, ऐसा तो नहीं आपने चोरी का बिजनेस शुरू कर दिया हो पार्टनरशिप में मेरे साथ स्टीफन, रात को चोरी करनी है, तो दिस इज हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलॉफुल है। ओके सो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, सो कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा पार्टनर, जैसे मेरा पार्टनर स्टीफन सारे पैसे ही लगाएगा, ये रईस आदमी है, मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास पैसे नहीं है, हंस रहा है यानी नहीं लगाएगा। ओके सो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, और जो पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है मैंने और स्टीफन ने, उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो भी डिसाइड होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, जब हम बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं, जब हमने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो हमें उस पर फर्म जो है हमसे उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है कि हमने उस फर्म से लोन लिया है, ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज,
ठीक है ईशा, तो फर्म जो है हमसे लोन भी ले सकती है, वो इंटरेस्ट भी ले सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी रेट जो है हमारी पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेटा गिव मी अ मिनट, आई हैव जस्ट रिसीव अ कॉल, हाँ गिव मी अ मिनट। उसके बाद बेटा रेमुनेशन टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को हम सैलरी दे सकते के लिए भी मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप में कि हम उसको कितनी सैलरी पे कर रहे हैं। ओके, सेटलमेंट ऑफ द फिर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल पे पूरा चैप्टर है, हम उसको बेटा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, एसेट्स जो भी हमारे पास है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन, जो भी फर्म की एसेट्स है उसका वैल्यूएशन का मेथड भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो हम अपने अपने पैसे कैसे निकालेंगे, वापस कैसे लेंगे, उसका भी सेटलमेंट का हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड्स, आपको पता है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, वो भी हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की राइट्स क्या होंगे और ड्यूटीज क्या है, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, दैट शुड बी मेंशन्ड इनटू द पार्टनरशिप डीड। अनदर वन, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन जो मैंने आपसे पहले भी बताई थी कि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए कि भाई हमारा ये रोड बन जाएगी तो हमारी पार्टनरशिप खत्म, या 20 इयर्स के लिए पार्टनरशिप है, जैसे मारुति ने सुजुकी के साथ की थी, हीरो ने होंडा के साथ की थी। ठीक है, बैंक ऑपरेशन, बैंक अकाउंट ऑपरेशन, हाउ शैल द बैंक अकाउंट विल बी ऑपरेटेड, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट की जाएंगे, वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर और जॉइंटली, कि दोनों पार्टनर ऑपरेट करेंगे कि एक ही पार्टनर ऑपरेट करेगा। डेथ ऑफ द पार्टनर, कि किसी पार्टनर की मैयत, डेथ होने के बाद, सॉरी, डेथ होने के बाद फर्म डिसॉल्व हो जाएगी या कंटिन्यू चलेगी। ओके, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर झगड़ा हो गया मेरा और स्टीफन का पार्टनरशिप में तो सेटलमेंट कैसे होगा, वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बेटा, डीड इज क्लियर टू यू? अगर पार्टनरशिप डीड हमारी क्लियर हो गई तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है एक बार और, फिर कल सुबह मैं इसका नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट लूंगा, जितना आज मैंने पढ़ाया है कल टेस्ट लेना है मुझे इसका। ठीक है, इसका मुझे कल टेस्ट लेना है मेरे बच्चे। और अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, मैंने स्टीफन के साथ पार्टनरशिप डीड करी ही नहीं है, मैंने स्टीफन से बोला, बोले सर आप बड़े हो, अब आपके साथ क्या पार्टनरशिप डीड करना सर, आप जो कहोगे हम मान लेंगे सर। इन्होंने हमारी बड़प्पन होने का, हमारे टीचर होने का, हमारा गुरु होने का सम्मान किया और पार्टनरशिप डीड नहीं करी। और बाद में इन्होंने मुझसे झगड़ा कर लिया, स्टीफन ने जब झगड़ा कर लिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दिव्या। अब सुखताब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे सॉल्व होगा ईशा, वंशिका? तो उसके लिए हमारे पास 6 पॉइंट हैं जो कंपनी एक्ट 1932 कहती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है, ये 6 पॉइंट है, आपको ये करने होंगे, ये आपके डिस्ट्रीब्यूट सॉल्व करेंगे। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। याद हो गया? पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। अब जो भी होगा 50-50 होगा। अगर हमने 1 लाख रुपए कमाए तो स्टीफन को भी 50,000 मिलेंगे, मुझे भी 50,000 मिलेंगे। ठीक है वंशिका, क्लियर बेटा? Second point, interest on capital. Vaishali, interest on the capital will not allowed. Okay, Anshika?
इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल हम नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल हम नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल स्नेहा हम लोग नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जशनप्रीत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कार्तिका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पे नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पे नहीं करेंगे। ओके, हम चार्ज पे को कहेंगे, चार्ज नहीं करेंगे। सो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस पे हम 6% पे करेंगे। वी हैव चार्ज द इंटरेस्ट ऑन loans is 6%, we'll charge the interest on loan 6%. Point clear? 6 point, remuneration, 6 point, Taranjot and Avneet, remuneration हम उसको सैलरी कमीशन कुछ नहीं देंगे। ठीक है तरन बेटा, अपना वेबकैम ऑफ करो, ऑन करो बेटा। ओके अवनीत, हम उसको सैलरी कमीशन बेटा जी नहीं देंगे, बिल्कुल हमारे पार्टनरशिप डीड में नहीं है। Will not pay the salaries and commission। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा पॉइंट, हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट करने के लिए तरन हमें क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, दोनों पार्टनर का कंसेंट चाहिए। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं है तो हम न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे। सो फिर से सुनो मेरे बच्चों, भाई की बात फिर से सुनो कि 6 पॉइंट है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन रेशियो, सॉरी शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग नॉट अलाउड। फोर्थ पॉइंट, 6% interest on loan, 6% interest on loan, 6% should be charged on the interest on loan. Fifth point, no remuneration, no salary, no commission will be allowed. Sixth point, admission of the partner cannot be admitted unless the partners are agreed to it। जब तक पार्टनर्स तैयार नहीं होंगे किसी को हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आएगा आपके पेपर में, सीबीएसई के पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 आता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 एंट्रीज कराता है जो अभी मैंने आपको बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सैंपल पेपर पिछले 10 साल के उठा के क्वेश्चन पेपर देखो सीबीएसई के, आपको उसमें 2-3 में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आज मैंने 3 मार्क्स का ये 2 आपके एमसीक्यू तैयार करा दिए बेटा जी। आज आपने 5 मार्क्स का पेपर तैयार कर लिया है। इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, वरना इसके आगे वाला 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी हम करते हैं आगे। आज मजा आया पढ़ने में, अच्छा लगा, यू हैव एंजॉयड द क्लास। सुबह से पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, लंच भी नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। लंच पे फोन आया था, मैंने कहा बेटा बच्चों को पढ़ा लूं आज। ठीक है, यू एंजॉयड। सो मॉर्निंग इसका टेस्ट ले लूं, जल्दी बोलो मेरे बच्चों, तुम मेरे क्लास के बच्चे हो, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूं, मुझे बताओ ना जल्दी से, हाँ या ना। कल इन सब का मैं टेस्ट लूंगा जितना आज पढ़ाया है। इसी चैप्टर है, स्लो स्लो करेंगे, मजा आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।